ٹیکسٹائل مینوفیکچرنگ میں استعمال ہونے والے اہم ترین خام مال کے حصول میں مشکلات، ڈائز اینڈ کیمیکلز کی درآمد میں ڈالر کا ایکسچینج ریٹ رکاوٹ بن گیا۔ ڈالر کی غیر مستحکم پوزیشن نے امپورٹرز کے لیے مزید مسائل پیدا کر دیے۔ دیکھیے محمد بلال ڈوگر کی یہ رپورٹ۔ امپورٹرز کو ٹیکسٹائل خام مال کا اہم جز ڈائز اینڈ کیمیکلز کی درآمد میں مشکلات، ڈالر کے اتار چڑھاؤ نے درآمدی سامان کا حصول ناممکن کر دیا۔ فکس ریٹ نہ ہونے سے امپورٹرز ریٹ لینے اور دینے سے قاصر نظر آنے لگے۔ امپورٹرز کو لیٹر آف کریڈٹ کے حصول کے لیے بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اوپن مارکیٹ ریٹ بے قابو، جبکہ انٹر بینک میں ڈالر 285 پر آ گیا۔ ڈائز اینڈ کیمیکلز ایسوسی ایشن اتفاق گروپ صدر میاں زاہد ایوب اور جنرل سیکرٹری کیسر چغتائی کی سٹی 41 سے گفتگو کہتے ہیں مارکیٹ اور انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت کے فرق اور غیر مستحکم صورتحال نے مارکیٹ میں کاروبار کو روک دیا ہے۔ بینک ریٹ بتاتا ہے 285 286 جتنا بھی ہے، اور ایکچولی جو ڈالر کا ریٹ ہے وہ 325 کے قریب ہے، 330 ہے، اور جب ہم کسٹمر کو چیز بیچتے ہیں تو وہ کہتا ہے جی کہ یہ تو ریٹ جو ہے وہ 285 ہے، آپ کس طرح اس کی کیلکولیشن کر رہے ہیں؟ تو گورنمنٹ کو چاہیے خدا را اس پہ جو ہے نا وہ ٹھوس پالیسی بنائیں، اس کو واضح کریں، ایک ہی ریٹ کریں۔ 2-3 روپے کا ڈیفرنس تو آتا تھا پہلے بھی، وہ قابل قبول ہے۔ اتنی زیادہ پرائسز جو ہے ڈالر کی جو ہے وہ فلکچویٹ ہوئی ہیں۔ ابھی ہوتا کیا ہے کہ پرائس دی جاتی ہے 285 کے حساب سے، جبکہ چیز خریدی جاتی ہے 330 320۔ امپورٹرز کہتے ہیں ڈالر کی قیمت کے اتار چڑھاؤ نے غیر یقینی صورتحال پیدا کر دی ہے۔ مہنگا سامان منگوا لیں تو بعد کی صورتحال کیا ہو کوئی نہیں جانتا۔ صنعتکار مزید نقصان برداشت کرنے کی سکت نہیں رکھتے۔ کیمرمین حسن چوہان کے ساتھ محمد بلال ڈوگر، فیصل آباد۔ محکمہ خوراک فیصل آباد نے گندم خریداری کا 76% حصہ حاصل کر لیا۔ ضلع بھر سے 1,10,000 میٹرک ٹن گندم تاحال نہ خریدی جا سکی۔ محکمہ خوراک فیصل آباد تاحال 8,48,000 گندم کی بوریاں خرید سکا۔ 11 گندم خریداری مراکز میں باردانہ خریداری کا عمل جاری ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں محکمہ خوراک فیصل آباد نے گندم خریداری کا 76% ہدف حاصل کر لیا۔ ضلع بھر سے 1,10,000 میٹرک ٹن گندم تاحال نہ خریدی جا سکی۔ محکمہ خوراک فیصل آباد تاحال 8,48,000 گندم کی بوریاں خرید سکا۔ 11 گندم خریداری مراکز میں باردانہ خریداری کا عمل جاری ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں محکمہ خوراک فیصل آباد نے گندم خریداری کا 76% ہدف حاصل کر لیا۔ ضلع بھر سے 1,10,000 میٹرک ٹن گندم تاحال نہ خریدی جا سکی۔ محکمہ خوراک فیصل آباد تاحال 8,48,000 گندم کی بوریاں خرید سکا۔ گندم خریداری کی شرح 76% ریکارڈ کی گئی۔ کسانوں میں باردانہ کی تقسیم کی شرح 102% ریکارڈ۔ دوسری جانب فیسکو کا کرایہ کے دفاتر سے چھٹکارا حاصل کرنے کا فیصلہ۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی ہدایات پر فیسکو کا تمام رینٹ کے دفاتر کی جگہ نئے دفاتر تعمیر کرنے کی منصوبہ بندی۔ فیسکو ہیڈ کوارٹر نے سول ورکس کو نئے دفاتر کی تعمیر کا تخمینہ لگانے کی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ فیسکو کا کرایہ کے دفاتر سے چھٹکارا حاصل کرنے کا فیصلہ۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی ہدایات پر فیسکو کا تمام رینٹ کے دفاتر کی جگہ نئے دفاتر تعمیر کرنے کی منصوبہ بندی ہے۔ اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں اویس علی، جی بتائیے گا۔ جی بالکل، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی ہدایت پر فیسکو کا رینٹ کے دفاتر سے چھٹکارا حاصل کرنے کا فیصلہ۔ اسی حوالے سے فیسکو کی جانب سے شعبہ سول ورکس کو خصوصی طور پر ہدایات جاری کر دی ہیں کہ فیصل آباد ریجن بھر میں فیسکو کے جو رینٹ کے دفاتر ہیں ان کے جو ہے وہ اپنے اور نئے دفاتر کی تعمیر کا کام جو ہے وہ جاری کیا جائے اور ان کی ٹینڈرنگ کا پروسیجر جو ہے وہ بھی مکمل کیا جائے تاکہ رینٹ کے دفاتر سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکے۔ فیسکو ماہانہ لاکھوں روپے جو ہے وہ کرایہ کی مد میں جو ہے وہ اخراجات دفاتر کے برداشت کرتا ہے، اور اب جو ہے وہ فیصل آباد شہر بھر سمیت ریجن بھر میں فیسکو کے جو رینٹ کے دفاتر ہیں ان کی جگہ فیسکو کی جانب سے نئے دفاتر جو ہے وہ تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اسی والے سے فیسکو کام کا یہی کہنا ہے کہ کرائے کی مد میں جو ہے وہ فیسکو لاکھوں روپے دفاتر کا سب ڈویژن اور ڈویژن دفاتر کا ادا کرتا ہے۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی ہدایت پر سول ورکس کو خصوصی طور پر ہدایات دی گئی ہیں کہ فیصل آباد ریجن بھر میں جو رینٹ کے دفاتر ہیں ان کی تعمیر کے حوالے سے تخمینہ لگایا جائے اور ٹینڈرنگ کا پروسیجر جو ہے وہ مکمل کیا جائے اور جلد از جلد ٹینڈر کر کے رینٹ کے دفاتر کی جگہ نئے دفاتر تعمیر کیے جائیں تاکہ فیسکو جو ہے وہ ماہانہ وار جو ہے وہ دفاتر کے کرائے سے چھٹکارا حاصل کر سکے۔ اور ویسے لیے ہمیں فیسکو کے دفاتر کے حوالے سے آگاہ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ آپ کو بتائیں کہ جینکو ملازمین کے لیے بڑی خوشخبری۔ چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹرز فیسکو ملک تحسین آوان نے جینکو ملازمین کا بڑا مطالبہ مان لیا۔ جینکو ملازمین کی فری سپلائی بحال کر دی گئی۔
83 करोड़ रुपए की अदम अदायगियों पर फेस्को ने जेनको मुलाजमीन की फ्री सप्लाई बंद कर दी थी। 300 से ज्यादा जेनको मुलाजमीन की बिजली की फ्री सप्लाई बहाल कर दी गई। आपको बता रहे हैं जेनको मुलाजमीन के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फेस्को मलिक तहसीन अवान ने जेनको मुलाजमीन का बड़ा मुतालबा मान लिया। इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं अवैस अली से। जी अवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल, जेनको मुलाजमीन के लिए बड़ी खुशखबरी जो है वो आज सामने आई है। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फेस्को मलिक तहसीन अवान की जानिब से जेनको मुलाजमीन की फ्री सप्लाई बहाल कर दी गई है। 83 करोड़ रुपए की अदम अदायगियों पर चीफ एग्जीक्यूटिव फेस्को चौधरी बशीर अहमद की जानिब से जेनको मुलाजमीन की फ्री सप्लाई की सहूलत जो है वो वापस ले ली गई थी और ये कहा गया था कि जब तक जो है वो जेनको की जानिब से फेस्को को अदायगियां नहीं की जाएगी, फ्री सप्लाई की सहूलत नहीं दी जाएगी। लेकिन अब चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फेस्को मलिक तहसीन अवान की जानिब से जेनको मुलाजमीन का मुतालबा मानते हुए उनकी फ्री सप्लाई जो है वो बहाल कर दी गई है। इसी वाले से चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फेस्को मलिक तहसीन अवान का यही कहना है कि फ्री सप्लाई का मुतालबा जो है वो जेनको मुलाजमीन की जानिब से किया जा रहा था। जो उनका मुतालबा था वो पूरा कर दिया गया है और फेस्को के तमाम तर दफातर को ये हदायत जारी कर दी गई हैं कि जेनको मुलाजमीन की जो फ्री सप्लाई है वो फिलफौर बहाल की जाए। फेस्को में 300 जेनको के ऐसे मुलाजमीन हैं जो फ्री सप्लाई की सहूलत ले रहे थे, सप्लाई बंद की गई थी और कल से जो है वो उनकी फ्री सप्लाई चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फेस्को मलिक तहसीन अवान की हदायत पर फेस्को हेडक्वार्टर की जानिब से जो है वो बहाल कर दी जाएगी। जेनको मुलाजमीन की बिजली की फ्री सप्लाई बहाल कर दी गई है। वैसे हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब एफबीआर हेडक्वार्टर ने टायर 1 कैटेगरी में आने वाले रिटेल स्टोर्स की फहरिस्त जारी कर दी। मुतालिका स्टोर्स के पीओएस में रजिस्टर्ड ना होने पर सेल्स टैक्स एडजस्टमेंट में कटौती शुरू कर दी जाएगी। इस हवाले से हम मजीद बात करते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम की कैटेगरी में आने वाले जो रिटेलर्स, फैसलाबाद के रिटेलर्स हैं, उनकी फहरिस्त जारी कर दी गई है कि वो तमाम रिटेलर्स जो कि टीयर 1 कैटेगरी में आते हैं, यानी कि वो उनका जो बिजली का बिल है वो माहाना 1 लाख रुपए या उससे ज़ायद आता है, या फिर वो किसी एयर कंडीशन शॉपिंग मॉल में है, या वो किसी ब्रांड या चेन स्टोर की से ताल्लुक़ रखते हैं, या फिर उनकी दुकान जो है वो 1000 स्क्वायर फुट से बड़ी है, तो वो लोग सेल्स टैक्स के तस्दीकी निज़ाम पीओएस सिस्टम में रजिस्टर्ड होने के पाबंद हैं। इस हवाले से फैसलाबाद में 500 से ज़ायद स्टोर्स जो हैं वो पीओएस सिस्टम में रजिस्टर्ड हो चुके हैं और उनको मरहलावार रजिस्टर्ड किया जा रहा है। और अब एफबीआर की जानिब से नए लोगों की फहरिस्त जो है वो जारी की गई है कि जिनको पीओएस में रजिस्टर्ड होना चाहिए और वो रजिस्टर्ड नहीं है। एफबीआर हुक्काम के मुताबिक लिस्ट में मौजूद जो शॉपिंग पॉइंट्स हैं, अगर वो इस महीने के दौरान सेल्स टैक्स के तस्दीकी निज़ाम पीओएस में रजिस्टर्ड नहीं होंगे तो आइंदा महीने से उनकी जो सेल्स टैक्स इनपुट एडजस्टमेंट है उसमें 30% तक कटौती शुरू हो जाएगी और उससे अगले महीने भी रजिस्टर्ड ना होने पर वो 60% तक, यानी कि उनके रिफंड्स में 60% तक कटौती होगी। इसके साथ साथ एफबीआर के पास इख्तियार होगा कि वो रजिस्टर्ड ना होने वाले जो शॉपिंग पॉइंट्स हैं उनको सील कर सके और उनको जुर्माना भी आयद कर सके। जी, अगले माह से गैर रजिस्टर्ड की सेल्स टैक्स एडजस्टमेंट में 7% कटौती होगी। और उमैर अजमत हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। कमिश्नर सिल्वर सईद की ज़ेर सदारत कमिश्नर ऑफिस में डीसीज कॉन्फ्रेंस। फैसलाबाद, जंग, तोबा और चिन्योट के डिप्टी कमिश्नर्स ने शिरकत की। कमिश्नर सिल्वर सईद ने डिप्टी कमिश्नर से मुत्तलिका अजला में जारी चारों अजला में शजरकारी, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की कारकर्दगी और डेवलपमेंट स्कीमों बारे ब्रीफिंग लेते हुए रेवेन्यू अफसरान की कारकर्दगी पर कड़ी नजर रखने की हिदायत दी। हम अपडेट कर रहे हैं, हम आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से। कमिश्नर सिल्वर सईद की ज़ेर सदारत कमिश्नर ऑफिस में डीसीज कॉन्फ्रेंस हुई है। फैसलाबाद, जंग, तोबा और चिन्योट के डिप्टी कमिश्नर्स की शिरकत। कमिश्नर सिल्वर सईद ने डिप्टी कमिश्नर से मुतालिका अजला में जारी चारों अजला में शजरकारी, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की कारकर्दगी और डेवलपमेंट स्कीमों बारे ब्रीफिंग लेते हुए रेवेन्यू अफसरान की कारकर्दगी पर कड़ी नजर रखने की हिदायत दी। आपको बता रहे हैं कमिश्नर सिल्वर सईद की ज़ेर सदारत कमिश्नर ऑफिस में डीसीज कॉन्फ्रेंस। फैसलाबाद, जंग, तोबा और चिन्योट के डिप्टी कमिश्नर्स ने शिरकत की। कमिश्नर सिल्वर सईद ने डिप्टी कमिश्नर से मुतालिका अजला में जारी चारों अजला में शजरकारी, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की कारकर्दगी और डेवलपमेंट स्कीमों बारे ब्रीफिंग लेते हुए रेवेन्यू अफसरान की कारकर्दगी पर कड़ी नजर रखने की हिदायत दी।
आपको अपडेट कर रही हैं कमिश्नर सिल्वर सईद की ज़ेर सदारत कमिश्नर ऑफिस में गुड गवर्नेंस पर डिप्टी कमिश्नर कॉन्फ्रेंस हुई। इस हवाले से हमें मजीद अपडेट कर रहे हैं वकास बेग। प्लीज हमें अपडेट कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, कमिश्नर फैसलाबाद सिल्वर सईद की ज़ेर सदारत डिप्टी कमिश्नर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है। इस हवाले से मैं बताऊं कि कमिश्नर फैसलाबाद का ये कहना था कि हर माह की आखिरी तारीख में आज से डीसी कॉन्फ्रेंस जो है वो मुनक्कद की जाया करेगी, जिसमें तमाम तर डिप्टी कमिश्नर जो है वो माहाना कारकर्दगी रिपोर्ट पेश करेंगे। इस हवाले से मैं ये भी बताते चलूँ कि डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद अली अनान कमर, डिप्टी कमिश्नर टोबा टेकलिंग अदनान अरशाद भी इस मीटिंग में शरीक हुए, जबकि डिप्टी कमिश्नर चनियोट मोहम्मद आसिफ रजा, डिप्टी कमिश्नर जंग अब्दुल्ला खुरम नियाजी के अलावा नेशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन खबर नियाजी ने भी शिरकत की। सरकारी मुहिम को जो है वो बेहतर अंदाज में चलाने की हिदायत की, बल्कि साथ साथ पेट्रोल पंप और बिल्डिंग और कमर्शियल बिल्डिंग के एनओसी के इजरा पर जो है वो मुकम्मल तौर पर ब्रीफिंग ली गई, जिसमें कमिश्नर सिल्वर सईद का ये कहना था कि गुड गवर्नेंस, बेहतरीन सर्विसेज डिलीवरी, शफाफियत को यकीनी बनाना जो है वो एजेंडे में हिस्सा है, ताकि तमाम डिप्टी कमिश्नर जो है वो एक ही मीटिंग के अंदर अपनी तमाम कारकर्दगी जो है उससे आगाह कर सकें। जबकि गंदम खरीदारी के टारगेट के हवाले से जिला छंग और जिला टोबा टेक्सिंग की कारकर्दगी को सराहते हुए कमिश्नर सिल्वर सईद का ये कहना था कि 2,77,000 का टारगेट जो है मुकम्मल कर लेना जिला छंग की अहम कामयाबी है। जबकि किसान को रजाकाराना तौर पर गंदम सेंटर में गंदम लाने के हवाले से जो है वो भी गुफ्तगू की गई, जिसमें जिला टोबा और फैसलाबाद में भी अहदाफ को मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल करने के हवाले से कमिश्नर सिल्वर सईद की जानिब से हिदायत जारी की गई। डिप्टी कमिश्नर को अपने अपने इजला में जारी तरक्याती मंसूबे जो है उनको हर हाल में 30 जून तक मुकम्मल करने की हिदायत भी जारी की गई। जी, हर माह के आखिरी हफ्ता में डीसीज कॉन्फ्रेंस मुनाकिद करने का फैसला किया गया है। वकास हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब बात कर लेते हैं मौसम के हवाले से। फैसलाबाद में मौसम खुशगवार हुआ तो खवातीन ने पार्क्स का रुख कर लिया। खवातीन बच्चों के हमरा पार्क्स में मौसम से लुत्फानंदोज होने लगी। खवातीन का कहना है मौसम अच्छा हुआ तो बच्चों को लेकर पार्क्स में आए। मजीद जानते हैं खिलजा लियाकत से। जी खिलजा, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में मौसम खुशगवार हुआ तो शहरियों ने पार्क का रुख कर लिया। मेरे साथ खवातीन मौजूद हैं जो फैमिलीज के साथ आई हैं, बच्चों को लेके पार्क में आई हैं। बच्चों की जिद पर जो है खुसूसन जब मौसम अच्छा होता है और पार्क में ना आए, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि बच्चों का तो बहाना होता है। खवातीन जो खुद भी ऐसे मौसम से खुद अंदोज होती हैं। एक खातून मौजूद आई हैं, इस हवाले से मजीद जानते हैं। आज ही बताइएगा, आप पार्क में आई हैं, ऐसे गर्मी की वजह से तो घर से बाहर निकला नहीं जाता, अब मौसम जो काफ़ी बेहतर हो गया, क्या कहेंगे? मौसम अच्छा है तो इसलिए घर से निकले, बच्चों को लेके थोड़ी बच्चों की आउटिंग हो जाएगी, बच्चे मज़े कर लेंगे, इंजॉय कर लेंगे। आज बिल्कुल खवातीन का कहना है कि गर्मी के बायस, गर्मी जो जितनी शिद्दत थी, घर से निकला नहीं जा रहा था, अब जो है 2-4 रोज से मौसम जो है वो कुछ अच्छा हो गया। आज सुबह से भी वक्फे से बूंदाबांदी का सिलसिला गर्मी की वजह से घर से निकलना मुश्किल होता था। खिलजा लियाकत हमें अपडेट कर रही थी, आपका शुक्रिया। पुराने रेलवे ट्रैक्स, रेलवे गाड़ियां चकाचक। चकझुमरा में डोगरा वाला फाटक के करीब ट्रेन हादसा, मियां वाली एक्सप्रेस की 2 बोगियां उलट गईं। ट्रेन में सवार 10 अफराद जख्मी। हादसा वेस्ट कैबिन के सामने पेश आया। ट्रेन लाहौर से बरास्ता जुमरा मियां वाली जा रही थी। जुमरा में डोगरावाला फाटक के करीब मियां वाली एक्सप्रेस ट्रेन की 2 बोगियां उलट गईं। हादसा के नतीजा में 10 मुसाफिर जख्मी हो गए, जिन्हें तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसा वेस्ट कैबिन के सामने पेश आया। ट्रेन लाहौर से बरास्ता जुमरा मियां वाली जा रही थी। जराये के मुताबिक हादसा ट्रेन का कांटा खुलने के बायस पेश आया। डीएस रेलवे सफियान डोगर ने मामला पर इंक्वायरी कमेटी बिठा दी और जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का अंदिया दिया। हादसा 14 घंटे बाद रेलवे इंतजामिया ने उलटने वाली बोगियों को ट्रैक पर चढ़ा दिया। जदीद मशीनरी की मदद से बोगियों को उठाया गया। अहले इलाका का कहना था कि हादसा के बाद मुकामी लोगों ने जख्मियों को उल्टने वाली बोगियों से निकाला। मुसाफिर जो से जख्मी शिकार हुए हैं, ठीक है, ये लोगों ने डेरे वाले ये हेल्प की है तो इनको बाहर निकाला है, ठीक है। तो इमदादी टीम आई है तो फ़ौरन इनको अस्पताल ले गई हैं, ठीक है। तो हम यहाँ आए तो हमने देखा ये बहुत परेशान हुए हैं, तो अल्लाह पाक से माफ़ी मांगनी चाहिए, ऐसा कहीं ना पेश आए। फैसलाबाद रीजन में रेलवे सिस्टम बहुत पुराना है, जिसे यौमिया बुनियाद पर निगरानी की जरूरत है। ट्रेन की बोगियां उल्टने के वाकयात पर काबू पाने के लिए महकमा रेलवे को तरजीही बुनियादों पर इकदाम करना होंगे, ताकि मुसाफिरों की जिंदगियों को महफूज बनाया जा सके। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ अवैस अली, सिटी 41 फैसलाबाद।
फूड अथॉरिटी टीम ने चिन्योट में गंदे पानी से उगाई जाने वाली सब्जियों पर हल चलवा दिया। 8 कनाल रकबे पर सीवरेज और केमिकल ज़दा पानी से सब्जियां उगाई गई थीं। तफसीलात जानते हैं बाबर मुनीर की इस रिपोर्ट में। सिटी 41 की खबर पर पंजाब फूड अथॉरिटी का सेहत दुश्मन अनासर के खिलाफ एक्शन। चिन्योट में फूड अथॉरिटी टीम ने दुराने मुआयना गंदे पानी से 8 कनाल रकबे पर काश्त होने वाली सब्जियों पर हल चलवा दिए। 8 कनाल रकबे पर सीवरेज और केमिकल ज़दा पानी से सब्जियां उगाई गई थी। सीवरेज मिले पानी से गोभी, भिंडी, सब्ज तोरी, पालक, टिंडे, कद्दू, बैंगन और दीगर सब्जियां अरसा दराज से काश्त की जा रही थी। जहरीले पानी से तैयार होने वाली सब्जियों से शहरी हेपेटाइटिस और दीगर बीमारियों में मुब्तला हो रहे थे, जिस पर सिटी 41 की जानिब से निशानदेही की गई। कैमरामैन एलिज़ाबेथ चौहान के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। पेट्रोलिंग पुलिस में सब इंस्पेक्टर्स का डिप्यूटेशन को ना खत्म कर दिया गया। पेट्रोलिंग पुलिस हुकाम ने सब इंस्पेक्टर्स को डिप्यूटेशन पर ना भिजवाने की इस्तदा की थी। पेट्रोलिंग पुलिस को एहलकारों की तरक्याती डिप्यूटेशन सीटों की वजह से रुक जाने की शिकायत थी। एडिशनल आईजी पेट्रोलिंग ने डेप्यूटेशन पर सब इंस्पेक्टर्स ना भिजवाने की सिफारिशात इरसाल की थी। आईजी पंजाब ने इस्तदा मंजूर करके सब इंस्पेक्टर की पीएचपी में डेप्यूटेशन खत्म कर दी। सब इंस्पेक्टर्स की डेप्यूटेशन खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं तैयब मकबूल से। जी तैयब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब पुलिस के सब इंस्पेक्टर्स का पंजाब पेट्रोलिंग हाईवे पुलिस में डेपुटेशन का कोटा खत्म कर दिया गया है। एडिशनल आईजी हाईवे पेट्रोल की जानब से आईजी पंजाब को यह इस्तदा गुज़िश्ता साल अरसाल की गई थी कि पंजाब पुलिस से सब इंस्पेक्टर पेट्रोलिंग पुलिस में आते हैं, जिसकी वजह से सब इंस्पेक्टर की सीटें फिल हो जाती हैं और पेट्रोलिंग पुलिस के जो अपने जवान हैं उनकी तरक्कियों का अमल रुक जाता है। इसलिए पंजाब पुलिस के सब इंस्पेक्टर्स को डेपुटेशन पर ना भिजवाया जाए ताकि सब इंस्पेक्टर की खाली सीटों पर पेट्रोलिंग पुलिस के अपने ही एहलकारों को तरक्की दी जाए। आईजी पंजाब की जानब से एडिशनल आईजी हाईवे पेट्रोल की ये इस्तदा मंजूर करते हुए डेपुटेशन पीरियड पीएचपी में खत्म कर दिया गया और इसी के साथ साथ तमाम अफसरान को यह हदायत की गई है कि मुस्तकबिल में कोई भी सब इंस्पेक्टर जो पेट्रोलिंग पुलिस में डिस्ट्रिक्ट पुलिस से जाना चाहेगा उसकी दरखास्त आईजी दफ्तर को फॉरवर्ड नहीं की जाएगी। तरक्की पाने वाले जो सब इंस्पेक्टर हैं उनको पेट्रोलिंग एंड हाई पुलिस के अलावा दीगर तमाम यूनिट्स में डेपुटेशन पर भिजवाया जाएगा, लेकिन पेट्रोलिंग पुलिस में डेपुटेशन पर अब किसी सब इंस्पेक्टर को हर किसी नहीं भिजवाया जाएगा। जी, सब इंस्पेक्टर्स का डेप्यूटेशन कोटा खत्म कर दिया गया है। तैयब हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। खबर शामिल कर लेते हैं जंग से। निगरान हुकूमत का एक और एहसन इकदाम, पंजाब का डोमिसाइल रखने वाले पंजाब के किसी भी जिला में ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। जंग में फैसले पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया। दीगर अजला से ताल्लुक रखने वाले जंग में मुकीम शहरी पुलिस खिदमत मरकज पहुंचाए। इसी पर बात करते हैं ब्यूरो चीफ जंग मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान, आगाह करें तफसीलात से। बिल्कुल, आपका अगर शनाख्ती कार्ड के ऊपर ज़िला और है और आप मुलाजमत जो हैं वो किसी और ज़िले में कर रहे हैं तो आपको लर्नर परमिट और ड्राइविंग लाइसेंस बनाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। इस मसले के हल के लिए निगरान हुकूमत की जानिब से जो है वो इनिशिएटिव लिया गया है और आप जहाँ पे भी हैं पंजाब के किसी भी ज़िले में मौजूद हैं और आपका पैदाइश का ज़िला कोई भी है तो आप पुलिस के खिदमत मरकज़ में रजू करें और वहाँ से लर्नर परमिट जो है वो हासिल करें। हमारे साथ इस वक्त झंग खिदमत मरकज़ की इंचार्ज ज़िरवा तस्कीन मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं। मैडम बहुत शुक्रिया, बताइएगा इसके ऊपर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है? जी सर, बिल्कुल, आईजी के इनिशिएटिव के मुताबिक इस पर फौरी अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। पहले भी खिदमत मरकज़ से शहरी काफ़ी हद तक मुस्तफ़ीद हो रहे थे, बस एक मुश्किल का सामना था कि उन्हें अपने पेरेंट डिस्ट्रिक्ट में आने की मसला होता था क्योंकि वो जॉब किसी और ज़िले में करते हैं, वापस लाइसेंस रिन्यूअल के लिए उन्हें वापस जाना पड़ता था। लेकिन अब आईजी साहब के इस इनिशिएटिव से उनकी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई है और वो अब जहाँ पर भी मौजूद हैं उस खिदमत मरकज़ में जाके अपना ये मसला हल करा सकते हैं। गवर्नमेंट का बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। डिस्ट्रिक्ट टोबा टेक सिंह से मेरा ताल्लुक है और झंग के अंदर मैं जिम्मेदारियां अदा कर रहा हूं, तो आज मैंने जो है वो अपना लर्नर परमिट जो है वो बनवाया है। मेरी तमाम जो नाजरीन हैं उनसे गुजारिश है कि वो जिस ज़िले के अंदर भी अपनी जिम्मेदारियां जो हैं वो अदा कर रहे हैं और उनका आबाई ज़िला कुछ और है तो पुलिस एक व्हीकल के लर्नर परमिट के लिए 7 रुपये टिकट फीस दरकार होगी। रमजान मिर्जा हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। फैसलाबाद में सर्टिफाइड बीजों की जानिब किसानों का रुझान बढ़ गया। पंजाब सीड कॉरपोरेशन के हुकाम कहते हैं रिवायती बीज की निस्बत सर्टिफाइड बीज से पैदावार 85% तक ज्यादा होती है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, बताइएगा।
کریں یہاں پر پنجاب سیڈ کارپوریشن کے حوالے سے، تو اس وقت ہمارے ساتھ انچارج مارکیٹنگ عبدالغفار موجود ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں، جانتے ہیں۔ عبدالغفار صاحب مجھے بتائیے گا، یہاں پر پنجاب سیڈ کارپوریشن جو کام تو اچھا کر رہی ہے، لیکن سرٹیفائیڈ بیج بہت سارے کسانوں تک نہیں پہنچ پاتا، کتنے فیصد لوگ یوز کرتے ہیں اور کتنے فیصد تک پہنچنا ضروری ہے؟ کیا کہیں گے ابھی جو گرمیوں میں جو فصلیں کاشت ہونی ہے یا جو اس کے بعد؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ ادھر تشریف لائے۔ ہمارے پاس یہ 1976 سے یہ ادارہ بنایا ہے، یہ کسانوں کی فلاح بہبود کے لیے بنا گیا ہے۔ تو ہمارے پاس تقریباً 9 لاکھ بیگ جو تھا نا، وہ تھا اس کا ویٹ کا، اور سارا سرٹیفائڈ تھا۔ اس کے علاوہ 1,15,000 بیگ ہمارے پاس تھا اس کا رائس کا، 32,000 بیگ ہمارے پاس تھا رایا کنولا کا، 32,000 بیگ ہمارے پاس تھا افغوئی جو ورائٹی ہے اس کا۔ اس کے علاوہ مونگ بین ہمارے پاس ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی سبزیاں ہیں وہ ہمارے پاس سرٹیفائڈ یہاں سے آپ کو مل سکتی ہیں۔ تو کتنے فیصد کسان جو ہے وہ یوز کرتے ہیں؟ تقریباً 80%۔ فیصل آباد؟ جی 80%، کیونکہ باقی جو ہوتے ہیں وہ کچھ گھر سے استعمال کرتے ہیں، باقی جو ہیں وہ مارکیٹ سے مختلف جو کمپنیز ہیں وہاں سے وہ بیج لے لیتے ہیں۔ کتنا فرق پڑتا ہے گھر کے بیج کا اور سرٹیفائڈ بیج کا؟ تقریباً 20 من کا فرق پڑتا ہے۔ 20 من پیداوار اس کی زیادہ آتی ہے جو سرٹیفائڈ بیج ہوتا ہے۔ جو ہمارا سیڈ ہے سرٹیفائڈ، اس کی ایوریج دوسرے بیج سے 20% زیادہ ہے۔ اس حوالے سے پنجاب سیڈ کارپوریشن کے یہاں پر مارکیٹنگ مینیجر ہمارے ساتھ موجود تھے عبدالغفار، اور بتا رہے تھے کہ کس طرح سے سرٹیفائڈ بیج کا فرق جو ہے وہ کم از کم 20 من تک پڑتا ہے، تو یہ تمام کسانوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ عبدالرحمان ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔